आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं अपनी स्वरचित कविता जिसका कि शीर्षक नारी है वो आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कवि बनते रहे, कविताएं लिखती गईं, शब्द पिरोते रहे, हर शहर निर्भया जलती रही, गलियों में मोमबत्तियां पिघलती रहीं, तस्वीरों पर मालाएं चढ़ती गईं, हर दिन कोई ट्विंकल झुलसती ही गई, ट्रस्ट बनते रहे, फिल्में कमाती गईं, भाषण हुए, आंसू बहे, रोष जगे, फिर सभी इस व्यवस्था में लीन इस समाज का हिस्सा बनते गए। फिर से कोई बच्ची नोची गई, गली में कहीं दबोची गई, बेझिझक चलती राह पर टटोली गई। ट्विटर पर पोस्ट सजे जस्टिस फॉर दिस, अखबारों में खून भरे, स्टेटस सबके फिर से सजे। कोई पलट कर कानून क्यों बदलता नहीं, बदले में इन दरिंदों की आंखें कोई नोचता क्यों नहीं, ये सिलसिला खून का क्यों रुकता नहीं, शब्द रोते कविताएं रोती, ये नरमन आहत होती नारी से आहत होता क्यों नहीं। Hello everyone, I'll be reciting two poems for you today. The title of the first poem is Dream of an Unborn. I met my mother in a dream, vivid, clear and clean. She held my hand into her petal soft palms, her face becalmed and serene, smiled to give pleasure more than 1,000 smiles could usher, her softness against my cheeks, her shower of laughter against my sullen face, painted my girlish hopes happy and gay. I met my mother in a dream filled with love and frolic. Her face shone bright like dazzling sunshine against my eyes opened wide, endeavoring to grasp the seeds of beauty wild. I met my mother in a dream, woven together with a thread brimming with rubies red, my shadowy existence into her shaded soul, my quivering whole caught tight like a gem prized into her soul. And when the dream broke, I saw the red rubies burst, rupture and flow, with the shining deity of love vanished and gone forever and ever. And I, the heart broke, shapeless, useless, lifeless, lay alone, dreamless, motionless, buried into the disintegrated fragments of the ruby thread. Thank you. The second poem, which I will recite, is entitled The Vale of Supnakha and provides a contemporary insight into the mythical character of Supnakha, who appears in the ancient Indian Hindu epic the Ramayana. The Vale of Supnakha. And Supnakha let out a scream of horror, tears of shame, rage, dismay, a collage of all, sent shivering chills down her spine. In a moment, the deep, dark woods, echoing with the laughter and snigger of transcendent humans, made her realize that her vanity and pride, of her beauty soft and sublime, of her face beset with fish-like eyes, of her long dancing trails of thick black tresses, is subject to the anger, whims and fancies of the venerated palace, which sent her a message direct and clear
a woman dare not make preposterous advances of love and lust, else she will have her nose slashed, ears chopped, disfigured, and forced to live in agonized misery for being bold enough to reinstate her heart's choice. Thank you. हमारा नाम है डॉक्टर रतन कुमारी वर्मा। हमारी कविता का शीर्षक है संपत्ति का अधिकार। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हमारी यह कविता समाज को समर्पित है। हमें हमारा हक चाहिए संपत्ति के अधिकार में। हमें हमारा हक चाहिए संपत्ति के अधिकार में। चल हो या अचल संपत्ति हो, चल हो या अचल संपत्ति हो, चाहिए हमें उत्तराधिकार में। बहुत हो चुकी आदर्श, परंपरा और रीति रिवाज की बातें। बहुत हो चुकी आदर्श, परंपरा और रीति रिवाज की बातें। इनके नाम पर सदा की गईं हमारे साथ अनंत घातें। इनके नाम पर सदा की गईं हमारे साथ अनंत घातें। बहुत सम्मान मिल चुका हमें, बहुत सम्मान मिल चुका हमें, देवी, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती बनाकर। हम सबसे बड़ी देवी हैं, सब हमारी पूजा करते हैं। हम सबसे बड़ी देवी हैं, सब हमारी पूजा करते हैं। सबसे बड़ी देवी के नाम पर सब हमसे शक्ति अर्जित करते हैं। सबसे बड़ी देवी के नाम पर सब हमसे शक्ति अर्जित करते हैं। पर यथार्थ की धरा पर हम सदियों से पैरों तले रौंदी जाती रही हैं। हम सदियों से पैरों तले रौंदी जाती रही हैं। हम नहीं बनना चाहते हैं देवी और न बनना चाहते हैं दानवी। हम नहीं बनना चाहते हैं देवी और न बनना चाहते हैं दानवी। जैसे पुरुष मानव बनकर जीता है, वैसे ही हम बनना चाहते हैं बनकर मानवी। जैसे पुरुष बनकर जीता है मानव, वैसे ही हम जीना चाहते हैं बनकर मानवी। हम नहीं जीना चाहते हैं बनकर 5 पतियों वाली द्रौपदी। हम नहीं जीना चाहते हैं बनकर 5 पतियों वाली द्रौपदी। चीर हरण का दृश्य रचकर लाज बचाने की नहीं लगाना चाहते गुहार। चीर हरण का दृश्य रचकर लाज बचाने की नहीं लगाना चाहते गुहार। हमें क्या पहनना है, कितना पहनना है, यह हमें खुद तय करना है। हमें क्या पहनना है, कितना पहनना है, यह हमें खुद तय करना है। हम श्रापग्रस्त अहिल्या बनकर उद्धार करने की नहीं करते हैं कामना। हम श्रापग्रस्त अहिल्या बनकर उद्धार करने की नहीं करते हैं कामना। हमें सती सावित्री, सीता अनुसुईया भी नहीं है बनना। हमें सती सावित्री, सीता अनुसुईया भी नहीं है बनना। कदम कदम पर हमें गवारा नहीं है अग्नि परीक्षा से गुजरना। कदम कदम पर हमें गवारा नहीं है अग्नि परीक्षा से गुजरना। समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा किया जाता रहा है परित्याग। समाज के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारा किया जाता रहा है परित्याग। त्याग, सेवा, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा का सदा पढ़ाया जाता रहा है पाठ। त्याग, सेवा, समर्पण, कर्तव्य निष्ठा का सदा पढ़ाया जाता रहा है पाठ। हमने सीता बनकर अकेले ही अरण्य में जन्म दिया लव और कुश को। हमने सीता बनकर अकेले ही अरण्य में जन्म दिया लव और कुश को। राजकुमारी सीता के साथ उस समय राजमहल का कोई न था आसपास। राजकुमारी सीता के साथ उस समय राजमहल का कोई न था आसपास। वन की बहनें ही थीं उस समय सबसे बड़ा भरोसा, आस, विश्वास। वन की बहनें ही थीं उस समय सबसे बड़ा भरोसा, आस, विश्वास। उन्होंने ही निभाकर सिखाया था मानवता का सबसे बड़ा पाठ। उन्होंने ही निभाकर सिखाया था मानवता का सबसे बड़ा पाठ।
दया माया ममता लो आज मधुरिमा का अगाध विश्वास। दया माया ममता लो आज मधुरिमा का अगाध विश्वास। श्रद्धा की ममता का अद्भुत खजाना आज भी खुला है हमारे पास। श्रद्धा की ममता का अद्भुत खजाना आज भी खुला है हमारे पास। पर अब हमको भी चाहिए पर अब हमको भी चाहिए दया माया ममता मधुरिमा का अगाध विश्वास। पर अब हमको भी चाहिए दया माया ममता मधुरिमा का अगाध विश्वास। हमको भी क्या बनना है, क्या करना है, चाहिए इसके निर्णय का अधिकार। हमको भी क्या बनना है, क्या करना है, चाहिए इसके निर्णय का अधिकार। यह अधिकार हमें तभी मिल पाएगा जब हमारे पास होगा संपत्ति का अधिकार। यह अधिकार हमें तभी मिल पाएगा जब हमारे पास होगा संपत्ति का अधिकार। शोषण की चरम पराकाष्ठा की सारी जड़ें स्वयं समाप्त हो जाएंगी। शोषण की चरम पराकाष्ठा की सारी जड़ें स्वयं समाप्त हो जाएंगी जब कोई लड़की घर से निकलने पर फिर वापस घर लौटने का हक पाएगी। जब कोई लड़की घर से निकलने पर फिर वापस घर लौटने का हक पाएगी। कोई लड़की शादी के नाम पर प्यार के झांसे में क्यों फंस जाती है? कोई लड़की शादी के नाम पर प्यार के झांसे में क्यों फंस जाती है? पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी न होने से बाहर के लोगों पर विश्वास अधिक कर लेती है। पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी न होने से बाहर के लोगों पर विश्वास अधिक कर लेती है। घर में रूखा उपेक्षापूर्ण व्यवहार मिलने से प्यार के बहेलियों के चंगुल में फंस जाती है। घर में रूखा उपेक्षापूर्ण व्यवहार मिलने से प्यार के बहेलियों के चंगुल में फंस जाती है। किशोर वय में उसकी भी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है इतनी परिपक्व। किशोर वय में उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है इतनी परिपक्व। कल्पना की उड़ान में उड़कर वह पाना चाहती है सर्वस्व। कल्पना की उड़ान में उड़कर वह पाना चाहती है सर्वस्व। भावना की उत्ताल तरंगे जब होती हैं तरंगायित, भावना की उत्ताल तरंगे जब होती हैं तरंगायित, तब धीरे से चुपके से प्रेम के कंकड़ से जाती है सिहर। स्वतंत्रता समानता सम्मान प्रेम पाने की कामना में, स्वतंत्रता समानता सम्मान प्रेम पाने की कामना में समाज के प्रेम के ठेकेदारों के जालों में जाती है फंस। समाज के प्रेम के ठेकेदारों के जालों में जाती है फंस। इसके लिए वह न्यौछावर कर देती है अपना सर्वस्व। इसके लिए वह न्यौछावर कर देती है अपना सर्वस्व। जैसे जैसे बड़ी होने लगती है सबसे ज़्यादा पाठ उसी को पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे बड़ी होने लगती है सबसे ज़्यादा पाठ उसे ही पढ़ाया जाता है। रोज़ रोज़ कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर बता दिया जाता है कि वह पराई है। रोज़ रोज़ कर्तव्य का पाठ पढ़ाकर बता दिया जाता है कि वह पराई है। वह भी सोचती है माता पिता ही हमारे भगवान हैं। वह भी सोचती है माता पिता ही हमारे भगवान हैं। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। उन्हीं वाक्यों को घुट्टी में पीकर वह बड़ी होती है। उन्हीं वाक्यों को घुट्टी में पीकर वह बड़ी होती है। मानसिक रूप से तैयार हो जाती है कि हमारा कोई हक नहीं है। मानसिक रूप से तैयार हो जाती है कि हाँ, हमारा कोई हक नहीं है। जो कुछ भी है वह सब कुछ भैया लोगों का ही है। जो कुछ भी है वह सब कुछ भैया लोगों का ही है। फिर जीवन में क्रम आता है कि जब शादी का सौभाग्य होता है। फिर जीवन में क्रम आता है कि जब शादी का सौभाग्य होता है, माता पिता अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज देकर पुत्री का घर बसाते हैं। यही उसके संपूर्ण जीवन का अधिकार होता है। यही मिलता है उसे हक। यही उसके संपूर्ण जीवन का अधिकार होता है। यही मिलता है उसे हक। माता पिता भाई बहन खुशी खुशी जो दे देते हैं वह दान दहेज उपहार ही उसके जीवन की संपूर्ण पूंजी है। वह दान दहेज उपहार ही उसके जीवन की संपूर्ण पूंजी है।
अब हमको यह दान दहेज उपहार नहीं चाहिए। अब हमको यह दान दहेज उपहार नहीं चाहिए। हमको तो बस पैतृक संपत्ति पर अधिकार चाहिए। हमको तो बस पैतृक संपत्ति पर अधिकार चाहिए। यह हक हमें केवल कानूनी ही नहीं चाहिए। यह हक हमें केवल कानूनी ही नहीं चाहिए। हमको खुशी खुशी अपने अधिकार पर कब्जा भी चाहिए। हमको खुशी खुशी अपने अधिकार पर कब्जा भी चाहिए। हमें मालूम है हमको संपत्ति पर अधिकार दिए जाने से सामाजिक समीकरणों की गणित गड़बड़ाएगी। हमें मालूम है हमको संपत्ति पर अधिकार दिए जाने से सामाजिक समीकरणों की गणित गड़बड़ाएगी। भाई बहनों के संबंधों में सबसे ज़्यादा कड़वाहट आएगी। भाई बहनों के संबंधों में सबसे ज़्यादा कड़वाहट आएगी। पर आज भी तो अदालतों में भाई भाई के बीच ही संपत्ति के बंटवारे के मुकदमे ही सबसे ज़्यादा होते हैं। लड़ते भाई भाई हैं पर बदनाम औरतों को किया जाता है। लड़ते भाई भाई हैं पर बदनाम औरतों को किया जाता है। पैतृक संपत्ति में किसी कागज़ के टुकड़े पर जिसका नाम नहीं होता है, पैतृक संपत्ति में कागज़ के टुकड़े पर जिसका नाम नहीं होता है, उसे ही बदनाम क्यों किया जाता है, अपमान क्यों किया जाता है। भाई भाई जब लड़ते हैं तब बहन किनारे खड़ी तमाशा देखती है। भाई भाई जब लड़ते हैं तब बहन किनारे खड़ी तमाशा देखती है। भाइयों से बात जब आपस में सुलझ नहीं पाती है तब बहन की भूमिका न्यायाधीश के रूप में आती है। न्यायाधीश की भूमिका तो सदा ही बहुत कठिन होती है, क्योंकि सच बात में बहुत कड़वाहट होती है। बहन का निर्णय जिस भाई को पसंद आ जाता है उसके साथ उसका सदा का संबंध बन जाता है। जिस भाई को उसके मन के अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है वह तब भी तो बहन को दुश्मन ही मान बैठता है। एक झटके में सदा सदा का संबंध खत्म हो जाता है। जब भाई भाई लड़ते हैं समाज में कहीं इसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वैसे ही अगर बहन बहन या बहन भाई सभी लड़ेंगे परस्पर तो यह प्रकृति के विपरीत तो कोई बात नहीं हो जाएगी। यह समाज की सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है, गति है। लड़ते लड़ते जब थक जाएंगे तब सब आपस में मिलकर रहने लगेंगे। याद रहे, इंसान जीवन का दांव थककर ही हार को स्वीकार करता है। याद रहे, इंसान जीवन का दांव थककर ही हार को स्वीकार करता है। वैसे ही यह सब भी समय आने पर स्वीकार करना पड़ेगा। समाज में जहाँ इसका नकारात्मक पहलू दिखाई देता है वहीं इसके सकारात्मक पहलू पर भी विचार होना चाहिए। बहन को संपत्ति में अधिकार मिलने पर भाई अधिक सम्मान करेंगे। तब उनके मायके आने जाने पर भाई समान व्यवहार करेंगे। जिस भाई को संपत्ति लेने की ज़रूरत होगी वह भाई स्वयं ही उसका ख्याल रखेगा। जिस भाई को ज़रूरत नहीं होगी वह वैसे भी बहन से बहुत संबंध नहीं बनाएगा। माता पिता अब भी पुत्री को संपत्ति में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। सामाजिक सोच की संरचना में उनको लगता है अगर हम पुत्री को उत्तराधिकारी बनाएंगे तो यहाँ रहने नहीं आएगी। जिससे अधिक पैसा मिलेगा वह उसको ही बेचकर चली जाएगी। वह चाहे हमारा पैतृक दुश्मन ही क्यों ना हो। माता पिता को आहत करने वाली सबसे बड़ी बात यही समझ में आती है। चाहते हुए भी उत्तराधिकारी बनाने से माता पिता कतराते हैं, पर वही काम अब पुत्र और भतीजे भी तो करते हैं। पिता या चाचा के न रहने पर उनकी ज़मीन को तो वह भी बेचते हैं। कोई गांव की ज़मीन बेचकर छोटे शहर में बसने चला जाता है। कोई छोटे शहर की ज़मीन बेचकर बड़े शहर में पहुंच जाता है। कोई बड़े शहर की भी ज़मीन बेचकर विदेश में चला जाता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यह सदा होता आया है। यह इंसान के बस की बात नहीं है, वह इसे रोक नहीं पाया है। वह भी तो अपने संतान की सदा उन्नति ही चाहता है। जब हम उन्नत करते करते विदेश में पहुंच जाते हैं तब हमें अपने देश के सुख की बात याद आती है। तब हमें समझ में आता है कि हम इसकी क्या क्या कीमत चुकाते हैं। तब हमें अब भी यह क्यों नहीं समझ में आता है
पुत्र पुत्री केवल शब्द में ही नहीं बराबर हैं, संपत्ति में भी बराबर हैं। तब हमें अब भी यह क्यों नहीं समझ में आता है कि पुत्र पुत्री केवल शब्द में ही बराबर नहीं हैं, संपत्ति में भी बराबर हैं। इस मूल जड़ की शुरुआत जब भी जिस दिन होगी, माता पिता की पहल ही सबसे बड़ा हथियार होगी। इस मूल जड़ की शुरुआत जब भी जिस दिन होगी, माता पिता की पहल ही सबसे बड़ा हथियार होगी। जिस दिन से माता पिता पुत्री को संपत्ति में अधिकार देने लगेंगे, उसी दिन से महिला सशक्तिकरण सही मायने में चरितार्थ होने लगेगा। जिस दिन से माता पिता पुत्री को संपत्ति में अधिकार देने लगेंगे, उसी दिन से महिला सशक्तिकरण सही मायने में चरितार्थ होने लगेगा। संपत्ति में अधिकार मिलने से शिक्षा में भी बराबर का अधिकार मिलेगा। संपत्ति में अधिकार मिलने से शिक्षा में भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अभी महंगी शिक्षा पुत्रों को और सस्ती शिक्षा पुत्रियों को देने का प्रचलन है। अभी महंगी शिक्षा पुत्रों को और सस्ती शिक्षा पुत्रियों को देने का प्रचलन है, तब शिक्षा में भी बराबर का अधिकार मिलने लगेगा। भाई बहनों के संबंधों में भी और सुधार दिखने लगेगा। शिक्षा का बराबर अधिकार मिलेगा तो बेटियां भी अधिक संख्या में उच्च पदों पर पहुंचेंगी। तब कोई बेटी कूड़े के ढेर पर नहीं फेंकी जाएगी। तब कोई बेटी कूड़े के ढेर पर नहीं फेंकी जाएगी। उदरस्थ कन्या का जन्म पाना सुनिश्चित हो जाएगा। कन्या भ्रूण हत्या का मामला भी थमने लगेगा। कन्या भ्रूण हत्या का मामला भी थमने लगेगा। अल्ट्रासाउंड मशीनों पर लिंग परीक्षण रोकने से अल्ट्रासाउंड मशीनों पर लिंग परीक्षण रोकने से कन्या भ्रूण हत्या का मामला नहीं रुकेगा। समाज में जहाँ पर असमानता का घाव है, वहाँ पर उसके उपचार करने की ज़रूरत है। समाज में जहाँ पर असमानता का घाव है, वहाँ पर उपचार करने की ज़रूरत है। चोट सिर पर लगी है, उपचार पैर का हो रहा है। चोट सिर पर लगी है, उपचार पैर का हो रहा है। इससे समस्या का समाधान कभी संभव नहीं है। इससे समस्या का समाधान कभी संभव नहीं है। मनुष्य के दिमाग की मशीन को समझने की ज़रूरत है। मनुष्य के दिमाग की मशीन को समझने की ज़रूरत है। पुरुष प्रधान सामाजिक संस्कृति की अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत है। पुरुष प्रधान सामाजिक संस्कृति की अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत है। माता पिता के दिमाग के सोच की अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत है। जिस दिन माता पिता के दिमाग की अल्ट्रासाउंड की मशीन में पुत्र और पुत्रियां बराबर संपत्ति के उत्तराधिकारी बन जाएंगी, उसी दिन से जन्म पाने का अधिकार भी सुनिश्चित हो जाएगा। वास्तविकता के धरातल पर महिला सशक्तिकरण खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। वास्तविकता के धरातल पर महिला सशक्तिकरण खिलखिलाता हुआ नजर आएगा। संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाए जाने से उसे पूर्ण मानव का दर्जा हासिल हो सकेगा। संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाए जाने से उसे पूर्ण मानव का दर्जा हासिल हो सकेगा। सभी कन्याएं चाहती हैं डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च अधिकारी बनना। सभी कन्याएं चाहती हैं डॉक्टर, इंजीनियर, उच्च अधिकारी बनना, पर कितनी ही कन्याओं को नसीब हो पाता है यह सब बनना। सबसे पहले चिंता करनी होगी उन गरीब कन्याओं की। उन कन्याओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है। उन कन्याओं को कैसे सशक्त बनाया जा सकता है जो प्यार के नाम पर, शादी के नाम पर झांसे में आ जाती हैं, हसीन ख्वाब लिए वेश्या बनने को मजबूर हो जाती हैं। और जब उन्हें एहसास होता है उनके साथ धोखा हुआ है, देह व्यवसाय के दलदल में, कीचड़ में फंस गई हैं, वह वहाँ से निकलने के लिए दिन रात छटपटाती हैं। निकलना चाहते हुए भी निकल नहीं पाती हैं, और अगर किसी तरह वहाँ से निकलने में, भागने में कामयाब भी हो गईं, तो भी घर का दरवाज़ा उनके लिए सदा बंद कर दिया जाता है। माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं। सारा अपराध पुरुष करता है, सजा स्त्री को देते हैं। उनके लिए घर का, परिवार का, समाज का रास्ता सब बंद कर देते हैं। न ही हम उनको पुत्री बना पाते हैं, न यह समाज पत्नी बनाने को तैयार होता है। धर्म के क्षेत्र में जाने पर जहाँ धर्म भी अशुद्ध हो जाता है, पर मंदिर में अगर वेश्या का नृत्य हो तो मंदिर भी पवित्र हो जाता है। हमको यह सब मानसिक संकीर्णता की दीवारें तोड़नी होंगी। पैतृक संपत्ति की मालकिन होने पर यह दीवार खुद ब खुद ढह जाएगी। जिस घर से निकलेगी उस घर का दरवाज़ा सदा के लिए बंद नहीं होगा। जब भी चाहेगी वापस अपने घर में लौट पाएगी। घर लौटने का अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा।
घर लौटने का अधिकार सुरक्षित सुनिश्चित हो जाएगा, तब माता पिता भाई बहन भी साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। तब माता पिता भाई बहन भी साथ रहने को तैयार हो जाएंगे। यह समाज भी उनको उनके घर से नहीं निकाल पाएगा, जैसे एक पुरुष को यह समाज उसके घर से कभी नहीं निकाल पाता है। वह जब भी लौटना चाहता है, घर का दरवाज़ा सदा उसके लिए खुला रहता है। जब अपने घर का दरवाज़ा खुला हो तो दुनिया की राहें खुल जाती हैं। उदार चेता सज्जन पुरुषों को ही इसकी पहल करनी होगी। पिता हों या भाई, सबसे पहले उनको ही आगे आना होगा। तभी हमारे समाज में धीरे धीरे यह रास्ता बनेगा, नज़ीरें बनेंगी। तब धीरे धीरे हर महिला सशक्त होती जाएगी। महिला सशक्तिकरण का पथ प्रशस्त होता जाएगा। महिला सशक्तिकरण का रास्ता निकलता है संपत्ति के अधिकार से। जिस दिन जिंदगी के धरातल पर उत्तराधिकार का अधिकार मिल जाएगा, महिलाएं अपने आप सशक्त हो जाएंगी, उसी तरह जिस तरह पुरुष हैं। समाज के रीत रिवाज, परंपराएं, मान्यताएं भी बदल जाएंगी। महिलाओं पर सदियों से थोपी गई दासता की भावना से मुक्ति मिलेगी। तब हर महिला शक्तिशाली बनेगी। महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाए जाने से जागरूकता जरूर आती है, पर उत्तराधिकार में अभी संपत्ति पर अधिकार मिलना बाकी है। विश्व भर की महिलाएं एक स्वर से कह रही हैं। विश्व भर की महिलाएं एक स्वर से कह रही हैं। उनके मन की वीणा के तार झंकृत हो रहे हैं। उनके मन की वीणा के तार झंकृत हो रहे हैं। हमें हमारा हक चाहिए संपत्ति के अधिकार में। हमें हमारा हक चाहिए संपत्ति के अधिकार में। चल हो या अचल संपत्ति हो, चाहिए हमें उत्तराधिकार में। चल हो या अचल संपत्ति हो, चाहिए हमें उत्तराधिकार में। परम पिता परमेश्वर और विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर रमा गुप्ता, इंचार्ज विमेन सेल, जगत तारण गर्ल्स डिग्री कॉलेज, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। यह कविताओं का एक छोटा सा संग्रह हमारे सेल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें कि हम कविताओं के माध्यम से अपने अध्यापकों के मनोभावों को और उनके जीवन के संचित अनुभवों को आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, आशा करते हुए कि ये प्रयास आप सभी को पसंद आएगा और आपके जीवन में कुछ नए संदेश और नए मार्गदर्शन को अवश्य अपनाने का आपको संदेश देगा। कहते हैं कि भाषा अभिव्यक्ति का सबसे अच्छा माध्यम है और कविताओं से कही गई जो बातें होती हैं वो सीधे हृदय को छूती हैं। मैं कविताएं नहीं लिखती हूँ, परंतु मुझे एक कविता मिली जो मुझे लगता है कि आज के समय में हम सभी के लिए बहुत ही प्रासंगिक है। यह कविता स्त्री पर है और मैं इसका पाठ आपके सामने कर रही हूँ। अपनी खुशी टांगने को तुम कंधे क्यों तलाशती हो, कमजोर हो ये वहम क्यों पालती हो। खुश रहो कि ये काजल तुम्हारी आंखों में आकर संवर जाता है। खुश रहो कि कालिख को तुम निखार देती हो। खुश रहो कि तुम्हारा माथा बिंदिया की खुशकिस्मती है। खुश रहो कि तुम्हारा रोम रोम बेशकीमती है। खुश रहो कि तुम ना होती तो क्या क्या ना होता। ना मकानों के घर हुए होते, ना आसरा होता। न रसोइयों से खुशबुएं ममता की उड़ रही होती। न त्योहारों पर महफिलें सज रही होती। खुश रहो कि तुम बिन कुछ नहीं है। तुम्हारे हुस्न से ये आसमां दिलकश और ये ज़मीं हंसी है। खुश रहो कि रब ने तुम्हें पैदा ही खुद मुख्तार किया, फिर क्यों किसी और को तुमने अपनी मुस्कानों का हकदार किया।
खुश रहो, जान लो कि तुम क्या हो। चांद सूरज हरियाली हवा हो, खुशियाँ देती हो, खुशियाँ पा भी लो, कभी बेबात गुनगुना भी लो। अपनी मुस्कुराहटों के फूलों को अपने संघर्ष की मिट्टी में खिलने दो। अपने पंखों की ताकत को नया आसमान मिलने दो। और हाँ, मत ढूंढो कंधे के सहारे सरक जाया करते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ अनुरोध भी कि यह वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। शुभकामनाओं के साथ।